بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب نسیم ہدایت کے جھونکے، پارٹ نمبر 23، جلد اول تا چہارم، پیج 262۔ سوال: آپ کو یہ بات کیسے معلوم تھی کہ یہ کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ان کے زمانے میں کوئی مسلمان نہیں تھا اور یہ کام نظام الدین سے شروع ہوا؟ جواب: اصل میں ہمارے گھر کے پاس مسجد میں جماعت کا کام ہوتا ہے۔ ہمارے پڑوس میں کئی لوگ جماعت سے جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ میرا اسکول کا ایک ساتھی ہے صدام، وہ جماعت میں لگ گیا ہے۔ اس نے داڑھی بھی رکھ لی ہے۔ اس سے میری بہت پکی دوستی ہے۔ اس سے میں ہر وقت اسلام اور جماعت کے بارے میں پوچھتا رہتا ہوں۔ جب اسے کوئی بات نہ آتی تو حافظ جی سے ملواتا تھا۔ سوال: کیا وہ آپ کے سب سوالوں کا جواب دیتے تھے؟ جواب: وہ سب سوالوں کا جواب نہیں دے پاتے تھے، بلکہ ان کے جواب سے میرے دل میں اور سوال کھڑے ہوتے تھے۔ میں نے ایک بار صدام کو گشت کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ لکھنؤ سے جماعت آئی ہوئی تھی، امیر صاحب بھی گشت میں تھے۔ میں نے ان سے کہا، آپ لوگ صورت دیکھ کر صرف مسلمانوں کو کیوں دعوت دیتے ہو؟ یہ بات ہزاروں ہندو بھائیوں کو کیوں نہیں بتاتے ہو؟ امیر صاحب نے جواب میں کہا کہ ابھی مسلمان ہی بہت بگڑے ہوئے ہیں، پہلے ہم ان کو سنوار دیں۔ میں نے کہا کہ جب اللہ کے سامنے مرنے کے بعد کھڑا ہونا پڑے گا تو ہم اللہ سے کہہ دیں گے، مالک یا تو آپ ہمیں اپنے محبوب نبی کے زمانے میں پیدا کرتے، نہیں تو پھر آپ ہمارے ساتھیوں کو پکڑیں۔ یہ صدام اور جماعت والے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے محلہ میں تبلیغ کا کام کرتے ہیں، مگر ہمیں نہیں بتاتے۔ ہماری کیا خطا؟ جب آپ نے ہمارے لیے بتانے والوں کا انتظام نہیں کیا، ہمیں یقین ہے یا تو آپ ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیے، ورنہ اللہ ہمارے بدلے آپ کو پکڑیں گے۔ امیر صاحب مولانا صاحب تھے، انہوں نے کہا، اس کے لیے ہماری دوسری جماعت والے کام کر رہے ہیں، آپ ایسا کریں، موقع لگا کر پھول چلے جائیں۔ وہاں پر مولانا وسیع صاحب اسی ضلع کے رہنے والے ہیں، مدرسے جا کر ان سے مل لیں، وہ آپ کو مولانا کلیم صاحب سے ملوا دیں گے۔ میں نے ان سے پتہ معلوم کیا اور اگلے روز ماتا پتا سے کہہ کر ہم جماعت میں جا رہے ہیں چلا آیا۔ سوال: کیا ان کو معلوم تھا کہ آپ مسلمان ہونے کے لیے جا رہے ہیں؟ جواب: نہیں، ان کو معلوم نہیں کہ جماعت کیا ہوتی ہے، البتہ وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی بھلا کام ہے، یہ لوگ نماز کی طرف مسلمانوں کو بلاتے ہیں۔ سوال: اس کے بعد کیا ہوا؟ جواب: میں پھولتا آیا، مولانا وسیع صاحب سے ملا، مولانا نے مجھے آپ کی امانت کتاب دی، وہ میں نے 4 دفعہ پڑھی۔ اتفاق سے حضرت مولانا کلیم صاحب شام کو دیر میں باہر سے آ گئے، انہوں نے مجھے کلمہ پڑھوایا اور قاری صاحب کو بلا کر سپرد کیا کہ ان کو نماز اور قاعدہ وغیرہ پڑھاؤ۔ میں نے پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ 15 دن میں قاعدہ پڑھ لیا، نماز یاد کر لی۔ حضرت کے لگاتار سفر کی وجہ سے میں شدت سے ان سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ حضرت سے ملنے کے لیے وہاں رہنے والے سبھی لوگ ایسا انتظار کرتے ہیں جیسے جانور اپنے چارہ ڈالنے والے مالک کا۔ خانقاہ میں رہنے والے سبھی مسلمانوں کا حال یہی دیکھا، کتنی مشکل سے کوئی پہنچا، کسی نے بے عزت کر دیا، کسی نے مار کھائی، مگر حضرت سے مل کر جیسے دھوپ سے چھاؤں میں آ گیا ہو۔ چاہے مہینوں میں ملاقات ہو، مگر ایک ملاقات کے بعد جیسے سارے زخموں پر مرہم نہیں، سارے زخم ٹھیک ہو گئے ہوں۔ ہر آدمی حضرت کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتے۔ 2 ہفتوں کے بعد حضرت پھولت آئے، اندر ایک ایک کو بلایا، مجھ سے حال پوچھا، گلے لگایا، 2 بار گلے لگایا اور جماعت میں جانے کا پروگرام بنایا۔ صبح کو میں نے قانونی کاغذات بنوائے، وکیل نے مجھ سے پوچھا، تمہارا اسلامی نام کیا ہے؟ حضرت نے تو بتایا تھا کہ نام بدلنا کچھ ضروری نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نام نہیں بدلتے تھے، تم بدلنا چاہو تو جو نام تمہیں اچھا لگے رکھ لینا۔ میں نے وکیل صاحب سے کہا، مجھے اذان میں اللہ اکبر بہت اچھا لگتا ہے، کیا محمد اکبر میرا نام ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا، مسلمانوں کا نام محمد اکبر ہوتا ہے، اکبر بادشاہ کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ میں نے کہا، تو بس اذان سے نام ہو جائے گا، مؤذن سب کو نماز کے لیے بلاتا ہے، اسی دعوت میں میرا نام آیا کرے گا، آپ میرا نام محمد اکبر رکھ دو۔ سوال: آپ نے آنے کے بعد گھر فون نہیں کیا؟ جواب: اصل میں حضرت نے بھی فون پر ماں سے بات کرنے اور تسلی دینے کے لیے کہا تھا، مگر مجھے ڈر لگا کہ ابھی میرا ایمان کمزور ہے اور مجھے اپنی ماں سے بے حد محبت ہے، کہیں میں اپنی ماں سے بات کروں، وہ رونے لگی، میرا دل پگھل جائے اور میرا من جانے کو چاہنے لگے اور پھر وہاں جا کر ایمان خطرے میں پڑ جائے، اس لیے بہت یاد آنے کے باوجود میں نے اپنی ماں کو فون نہیں کیا۔ اب جماعت میں سے آ جاؤں گا تو پھر گھر جا کر مجھے سب گھر والوں کو اسلام کی دعوت دینی ہے۔ سوال: آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مخالفت نہیں کریں گے اور آپ پر مشکل نہیں آ جائے گی؟ جواب: زیادہ امید تو نہیں ہے، میرے گھر والے بہت اچھے لوگ ہیں، اسلام سے محبت بھی رکھتے ہیں، پھر میں شروع میں ان کو حضرت کی کتاب آپ کی امانت پڑھوا دوں گا، میں جا کر 1000 چھپوا لوں گا۔ یہ کتاب ایسی محبت بھری، دل اور دماغ کو چھونے والی ہے کہ سچے من سے آدمی اس کو پڑھ لے تو مسلمان ہونے کے لیے انکار کرنے کو اسے 100 بار سوچنا پڑے گا۔ مجھے امید ہے گھر والے اسلام میں ضرور آ جائیں گے اور اگر مخالفت ہوگی تو
हुआ करे। हमारे कारी साहब ने हमें साहबा के किस्से सुनाए। मैंने फजाइल आमाल हिंदी में पढ़ी है। जब हमारे साहबा ने कुर्बानियां दी हैं तो हम भी देंगे। इस राह में अगर जान भी चली जाए तो फिर जान की कीमत बन जाएगी। मरना तो है ही, एक तो मुफ्त में जान देना है और एक है जान की कीमत बना लेना, वो भी जन्नत में जाने के लिए और प्यारे नबी से मिलने के लिए। मैं जब अंदर से टटोलता और तोलता हूँ, मेरा दिल ये कहता है अकबर, अल्लाह की मोहब्बत में, दावत की राह में, अल्लाह के बंदों को दोजख से बचाने के गम में जान देना। यूं ही मरने से कितना अच्छा लगेगा और कितना मजा आएगा। सवाल। माशा अल्लाह, अल्लाह ताला हमें भी ये जज्बा अता फरमाए। जवाब। मौलाना अहमद साहब, असल बात यह है कि हम ही डरते हैं, वरना पूरी दुनिया प्यासी है। हमारे इलाके में बस हजरत मौलाना के जानने वाले दो तीन लोग हैं जो लोगों को कलमा पढ़वा देते हैं। 25 लोग हमारे इलाके में पिछले साल से अब तक कलमा पढ़ चुके हैं, मगर सैकड़ों तैयार हैं। ये लोग भी जरा डर डर कर कलमा पढ़वाते हैं, अक्सर तो भूल जाने के लिए ही कहते हैं। हमारे इलाका में अक्सर लोग बिदअती और कब्र परस्त हैं, नमाज तक नहीं पढ़ते। सवाल। आपको ये कैसे मालूम हुआ कि ये बिदअत गलत चीज है? जवाब। ये चीज आदमी को अपनी अकल से भी गलत लगती है। अल्लाह के अलावा किसी को ना पूजना तो इस्लाम है, अब कब्र को पूजना कैसे सही हो जाएगा? मैं तो बिदअती मुसलमानों से कहता था, तो तुम में हम में क्या फर्क है? हम तुमसे फिर भी सही हैं कि हमारे सामने वो दिख रहा है तुम जिस कब्र वाले को पूछ रहे हो, तो क्या खबर वो आदमी की कब्र है या घोड़े की? लखनऊ में एक घोड़े शाह पीर थे, बहुत दिनों तक इसका उर्स होता रहा। बाद में मालूम हुआ कि वो किसी नवाब का घोड़ा था। ये तो मैं उनसे कहता हूँ तुमसे हम सही हैं, मगर जाहिर है मूर्ति पूजा किस तरह सही हो सकती है? जिसको हमने हाथों से बनाया तो हम बनाने वाले हुए, वो खुद हमारी पूजा करे, बनाने वाले की पूजा की जाती है। मैं इस्लाम लाने से पहले भी अपने हिंदू भाइयों से कहता था कि वो भगवान कैसा भगवान है जो शर्मगाह की पूजा करवाने को कहे। अकल पर पर्दे पड़ जाते हैं, वरना जरा आदमी अकल पर जोर डाले तो इस अकेले के अलावा कौन पूजा के लायक हो सकता है? सवाल। इस्लाम में आकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको इस्लाम की क्या बात अच्छी लगी? जवाब। इस्लाम की कौन सी ऐसी बात है जो अच्छी ना लगे? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो छोटी से छोटी सुन्नत भी ऐसी नहीं कि आदमी उस पर गौर कर ले और सिर्फ इसी को देखकर मुसलमान ना हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लाम पूरी जिंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीका है। ये नहीं कि धर्म को मंदिर तक रखा जाए और अपने कारोबार परिवार में मनमानी करे, बल्कि इस्लाम ने पूरी जिंदगी गुजारने का तरीका बताया है, और तरीका भी ऐसा प्यारा कि बस आदमी दीवाना हो जाए। सवाल। माशा अल्लाह, अल्लाह ने आपके लिए खास हिदायत के दरवाजे खोल दिए हैं। जमात से आने के बाद आपका क्या इरादा है? जवाब। जमात से वापस आने के बाद मेरा इरादा अपने घर जाकर काम करने का है। मेरा इरादा मुसलमानों में भी काम करने का है, खुसूसन बिदअती मुसलमानों में काम करने का है, और फिर अपने हिंदू भाइयों में काम करने का। हमारे इलाका में बहुत भोले और सच्चे लोग हैं, दो चार जियाले बस अपने आप को कुछ दिनों के लिए खपा दें तो बस पूरा इलाका दोजख से बच जाएगा। अभी कुछ रोज पहले हमारे इलाके में एक लाला जी इस्लाम में आए थे। उन्होंने राम मंदिर बनाने और बाबरी मस्जिद शहीद करने में 25 लाख रुपए अपनी जेब से खर्च किए। अल्लाह को उन पर तरस आ गया। शायद वो राम मंदिर को अल्लाह की रजा का जरिया समझकर बनवाने की कोशिश कर रहे थे। अल्लाह को उन पर प्यार आ गया। उनका अकेला जवान बेटा एक्सीडेंट में मर गया, दुकान में आग लग गई, खुद भी बीमार रहने लगे। सवाल। आप इसको अल्लाह का प्यार कह रहे हैं? जवाब। जी मौलाना अहमद साहब, इन हादसों से दिल में ख्याल आया कुछ गलती तो हुई है, तो दिल में आया कि मालिक का घर ढाया है, इस्लाम पढ़ना शुरू किया। मुसलमान होना चाहते थे, लोग डर की वजह से उनसे मिलते नहीं थे, कलमा पढ़वाने को तैयार नहीं थे। हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी ने एक साथी को भेजा, कलमा पढ़वाया, एक मस्जिद बनवा रहे हैं, उसके साथ मदरसा भी। मौलाना अहमद साहब एक बेटा और कुछ माल और सेहत गिनवा कर ईमान आ गया, तो इसको आप अल्लाह का प्यार कहेंगे या अल्लाह का गजब? सवाल। वाकई आप सही कहते हैं। जवाब। मुझसे कई मुसलमान भाइयों ने कहा कि तू घर बार छोड़कर क्यों जा रहा है? मैंने जवाब दिया, धोखे का घर छोड़कर हमेशा की जन्नत के महल खरीदने जा रहा हूँ। शायद मैं घर बार ना छोड़ता तो मुझे ईमान ना मिलता। मेरा घर बार छोड़ना अल्लाह की रहमत है, प्यार है या गुस्सा? सवाल। बिलाशुबा जज़ाकुमुल्लाह, मुसलमानों के लिए आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे? जवाब। हम क्या पैगाम दे सकते हैं, हम तो छुट भइये हैं, हमें तो अपने ईमान में भी शक है। हाँ, इतना जरूर कहते हैं कि मरने से पहले अपने इलाका के गैर मुस्लिम भाइयों की फिक्र करें, वरना वो हशर के मैदान में पकड़ेंगे जरूर, वहां आप फंसेंगे। ये समझना कि इस्लाम कौन लाएगा। कल शाम पंजाब के एक साहब का फोन आया था। हजरत के पास एक साहब जो सिख थे, मुसलमान हुए, वो इनको हजरत से दोबारा कलमा पढ़वा रहे थे। हजरत ने बताया कि कह रहे हैं इस हफ्ता में ये सरदार जी 40वें आदमी हैं जिन्होंने मेरे हाथ पर कलमा पढ़ा है। एक हफ्ता में एक एक आदमी 40 को कलमा पढ़वा दे तो चंद महीनों में दुनिया का हाल क्या हो जाएगा। और मेरे लिए और मेरे खानदान के लिए दुआ करें, खास तौर पर बस ईमान बाकी रहे और मैं ढल मिल ना जाऊं।
इसकी खास दुआ की आपसे दरख्वास्त है। सवाल बहुत बहुत शुक्रिया अकबर भाई। अस्सलाम वालेकुम। जवाब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुस्तफ़ा दस्तमाहनामा अरमगान मई 2009। जनाब सेठ मोहम्मद उमर राम जी लाल गुप्ता से एक मुलाकात। अहमद अफ़ा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद उमर मौलवी साहब वालेकुम अस्सलाम। सवाल सेठ साहब 2-3 महीने से अभी आपका बहुत जिक्र कर रहे हैं। अपनी तकरीरों में आपका जिक्र करते हैं, मुसलमानों को डराते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों की हिदायत के लिए हर चीज़ से काम लेने पर कादिर है। जवाब मौलवी साहब हजरत साहब बिल्कुल सच कहते हैं। मेरी जिंदगी खुद अल्लाह की दया और करम की खुली निशानी है। कहाँ मुझ जैसा खुदा और खुदा के घर का दुश्मन, और कहाँ मेरे मालिक का मुझ पर करम। काश कुछ पहले मेरी हजरत साहब या हजरत साहब के किसी आदमी से मुलाकात हो जाती तो मेरा लाडला बेटा ईमान के बगैर ना मरता। रोने लगते हैं और बहुत देर तक रोते रहते हैं। रोते हुए मुझे कितना समझाता था और मुसलमानों से कैसा ताल्लुक रखता था, और वो ईमान के बगैर मुझे बुढ़ापे में अपनी मौत का गम देकर चला गया। सवाल सेठ साहब पहले आप अपना खानदानी परिचय तारुफ कराइए। जवाब में लखनऊ के करीब एक कस्बे के ताजिर खानदान में पहली बार अब से 69 साल पहले 6 दिसंबर 1939 में पैदा हुआ। गुप्ता हमारी गोत है। मेरे पिताजी किराना की थोक की दुकान करते थे। हमारी छठी पीढ़ी से हर एक के यहाँ एक ही औलाद होती आई है। मैं अपने पिताजी का अकेला बेटा था। 9वीं क्लास तक पढ़कर दुकान पर लग गया। मेरा नाम राम जी लाल गुप्ता मेरे पिताजी ने रखा। सवाल पहली मर्तबा 6 दिसंबर को पैदा हुए तो क्या मतलब है। सवाल अब जवाब अब दोबारा असल में इसी साल 22 जनवरी को चंद महीने पहले मैंने दोबारा जन्म लिया, और सच्ची बात यह है कि पैदा तो मैं अभी हुआ। पहले जीवन को अगर कि नहीं तो अच्छा है, वो तो अंधेरा ही अंधेरा है। सवाल जी तो आप अपना खानदानी तारुफ करा रहे थे। जवाब घर का माहौल बहुत धार्मिक मजहबी था। हमारे पिताजी जिला के बीजेपी जो पहले जिन सिंह थी के जिम्मेदार थे। इसकी वजह से इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी हमारे घर की पहचान थी, और ये मुस्लिम दुश्मनी जैसे घुट्टी में पड़ी थी। 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने से लेकर बाबरी मस्जिद की शहादत के घिनौने जुर्म तक मैं इस पूरी तहरीक में आखिरी दर्जा के जुनून के साथ शरीक रहा। मेरी शादी एक बहुत भले और स्कॉलर खानदान में हुई। मेरी बीवी का मिजाज भी इसी तरह का था, और मुसलमानों से उनके घर वालों के बिल्कुल घरेलू ताल्लुकात थे। मेरी बारात गई तो सारे खाने और शादी का इंतजाम हमारे ससुर के एक दोस्त खान साहब ने किया था, और दसियों दाढ़ी वाले वहाँ इंतजाम में थे, जो हम लोगों को बहुत बुरा लगा था। और मैंने एक बार तो खाना खाने से इनकार कर दिया था कि खाने में इन मुसलमानों का हाथ लगा है, हम नहीं खाएंगे। मगर बाद में मेरे पिताजी के एक दोस्त थे पंडित जी, उन्होंने समझाया कि हिंदू धर्म में कहाँ आया है कि मुसलमानों के हाथ लगा खाना नहीं खाना चाहिए। बड़ी कराहियत के साथ बात ना बढ़ाने के लिए मैंने खाना खा लिया। 1952 में मेरी शादी हुई थी। 9 साल तक हमारे कोई औलाद नहीं हुई। 9 साल के बाद मालिक ने 1961 में एक बेटा दिया। इसके नाम मैंने योगेश रखा। इसको मैंने पढ़ाया, अच्छे से स्कूल में दाखिल कराया, और इस ख्याल से कि पार्टी और कौम के नाम इसको अर्पित वक्फ करूंगा, इसको समाज शास्त्र में पीएचडी कराया। शुरू से आखिर तक वो टॉपर रहा, मगर इसका मिजाज अपनी माँ के असर में रहा और हमेशा हिंदू के मुकाबले मुसलमानों की तरफ माइल रहता। फिरका वाराना मिजाज से उसको एलर्जी थी। मुझसे बहुत अदब करने के बावजूद इस सिलसिला में बहस कर लेता था। 2 बार वो एक हफ्ता के लिए मेरे राम मंदिर तहरीक में जुड़ने और इस पर खर्च करने से नाराज होकर घर छोड़कर चला गया। उसकी माँ ने फोन पर रो रो कर उसको बुलाया। सवाल अपने कबूल इस्लाम के बारे में जरा बताइए। जवाब मुसलमानों को मैं इस मुल्क पर आक्रमण कब्जा करने वाला मानता था, या फिर मुझे राम जन्मभूमि मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाने की वजह से बहुत चिढ़ थी, और मैं हर कीमत पर यहाँ राम मंदिर बनाना चाहता था। इसके लिए मैंने तन मन धन सब कुछ लगाया। 87 से लेकर 2005 तक राम मंदिर आंदोलन और बाबरी मस्जिद गिराने वाले कार सेवकों पर विश्व विश्व हिंदू प्रेस्ट को चंदा में कुल मिलाकर 25 लाख रुपए अपनी जाती कमाई से खर्च किए। मेरी बीवी और योगेश इस पर नाराज भी हुए थे। योगेश कहता था इस देश पर 3 तरह के लोग आकर बाहर से राज करते आए। एक तो आर्यन आए, उन्होंने इस देश में आकर जुल्म किया, यहाँ के शूद्रों को दास बनाया और अपनी साख बनाई। देश के लिए कोई काम नहीं किया, आखिरी दर्जा में अत्याचार जुल्म किए, कितने लोगों को मौत के घाट उतारा। तीसरे अंग्रेज आए, उन्होंने भी यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया, यहाँ का सोना चांदी हीरे इंग्लैंड ले गए। हद दर्जा अत्याचार किए, कितने लोगों को मारा, कत्ल किया, कितने लोगों को फांसी लगाई। दूसरे नंबर पर मुसलमान आए, उन्होंने इस देश को अपना देश समझकर यहाँ लाल किले बनाए, ताजमहल जैसा देश के गुरु का पात्र
काबिल फखर इमारत बनाई। यहाँ के लोगों को कपड़ा पहनना सिखाया, बोलना सिखाया। यहाँ पर सड़कें बनवाई, सराय बनवाई, खुसरा खतौनी, डाक का निज़ाम, आबपाशी का निज़ाम बनाया, नहरें निकाली और देश में छोटी छोटी रियासतों को एक एक करके एक बड़ा भारत बनाया। 1000 साल अल्पसंख्या अकलियत में रहकर अक्सरियत पर हुकूमत की और इनको मजहब की आज़ादी दी। वो मुझे तारीख के हवालों से मुसलमान बादशाहों के इंसाफ के किस्से दिखाता, मगर मेरी घुट्टी में इस्लाम दुश्मनी थी, वो ना बदली। 30 दिसंबर 1990 में मैं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था और 6 दिसंबर 1992 में तो मैं खुद अयोध्या गया। मेरे जिम्मा एक पूरी टीम की कमान थी। बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो मैंने घर आकर एक बड़ी दावत की। मेरा बेटा युकेश घर से नाराज होकर चला गया। मैंने खूब धूमधाम से जीत की तकरीब बनाई, राम मंदिर के बनाने के लिए दिल खोल कर खर्च किया, मगर अंदर से एक अजीब सा डर मेरे दिल में बैठ गया। बार बार ऐसा ख्याल होता था कोई आसमानी आफत मुझ पर आने वाली है। 6 दिसंबर 1993 आया तो सुबह सुबह मेरी दुकान और गोदाम में जो फासले पर थे, बिजली का तार शॉर्ट होने से दोनों में आग लग गई। तकरीबन 10 लाख रुपए से ज्यादा का माल जल गया। इसके बाद से तो और भी ज्यादा सहम गया। हर 6 दिसंबर को हमारा परिवार पूरा का पूरा सहमा सा रहता था और कुछ ना कुछ हो भी जाता था। 6 दिसंबर 2005 को युकेश एक काम के लिए लखनऊ जा रहा था। इसकी गाड़ी एक ट्रक से टकराई और मेरा बेटा और ड्राइवर मौका पर इंतकाल कर गए। इसका 9 साल का नन्हा सा बच्चा और 6 साल की एक बेटी है। यह हादसा मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था और मेरा दिमागी तवाजुन खराब हो गया। कारोबार छोड़कर दर बदर मारा फिरा। मेरी बीवी मुझे बहुत से मौलाना लोगों को दिखाने के ले गई। हरदोई में बड़े हजरत साहब के मदरसे में ले गई। वहां पर बाहर के कारी साहब हैं तो कुछ होश तो ठीक हुए, मगर दिल में मेरे ये बात बैठ गई कि मैं गलत रास्ते पर हूँ। मुझे इस्लाम को पढ़ना चाहिए। इस्लाम पढ़ना शुरू किया। सवाल, इस्लाम के लिए आपने क्या पढ़ा? जवाब, मैंने सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी सीरत पढ़ी। उसके बाद इस्लाम क्या है पढ़ी। इस्लाम एक परिचय मौलाना अली मियाँ जी की पढ़ी। 5 दिसंबर 2006 को मुझे हजरत साहब की छोटी सी किताब आपकी अमानत आपकी सेवा में एक लड़के ने ला कर दी। 6 दिसंबर अगले रोज थी। मैं डर रहा था कि अब कल को क्या हादसा होगा। इस किताब ने मेरे दिल में ये बात डाली कि मुसलमान होकर इस खतरे से जान बच सकती है। मैं 5 दिसंबर की शाम को 5-6 लोगों के पास गया, मुझे मुसलमान कर लो, मगर लोग डरते रहे। कोई आदमी मुझे मुसलमान करने को तैयार ना हुआ। सवाल, आप 6 दिसंबर 2006 को मुसलमान हो गए थे। आप तो अभी फरमा रहे थे कि चंद महीने पहले 22 जनवरी 2009 को आप मुसलमान हुए। जवाब, मैंने 5 दिसंबर 2006 को मुसलमान होने का पक्का इरादा कर लिया था, मगर 22 जनवरी को इस साल तक मुझे कोई मुसलमान करने को तैयार नहीं था। हजरत साहब को एक लड़के ने जो हमारे यहाँ से जाकर खुद मुसलमान हुआ था बताया कि एक लाला जी जो बाबरी मस्जिद की शहादत में बहुत खर्च करते थे मुसलमान होना चाहते हैं। तो हजरत ने एक मास्टर साहब को जो खुद बाबरी मस्जिद की शहादत में सबसे पहले कुदाल चलाने वाले थे भेजा। वो पता ठीक ना मालूम होने की वजह से 3 दिन तक धक्के खाते रहे। 3 दिन के बाद 22 जनवरी को वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे कलमा पढ़ाया और हजरत साहब का सलाम भी पहुंचाया। सुबह से शाम तक वो हजरत साहब से फोन पर बात कराने की कोशिश करते रहे, मगर हजरत महाराष्ट्र के सफर पर थे। शाम को किसी साथी के फोन पर बड़ी मुश्किल से बात हुई। मास्टर साहब ने बताया कि सेठ जी से मुलाकात हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कलमा पढ़ लिया है, आपसे बात करना चाहते हैं और आप उन्हें दोबारा कलमा पढ़वा दें। हजरत साहब ने मुझे दोबारा कलमा पढ़ाया और हिंदी में भी अहद करवाया। मैंने जब हजरत साहब से अर्ज किया कि हजरत साहब, मुझ जालिम ने अपने प्यारे मालिक के घर को ढहाने और इसकी जगह शिर्क का घर बनाने में अपनी कमाई से 25 लाख रुपए खर्च किए हैं। अब मैंने इस गुनाह की माफी के लिए इरादा किया है कि 25 लाख रुपए से एक मस्जिद और मदरसा बनाऊंगा। आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि जब उस करीम मालिक ने अपने घर को गिराने और शहीद करने को मेरे लिए हिदायत का जरिया बना दिया है, तो मालिक मेरा नाम भी अपने घर ढाने वालों की फहरिस्त से निकाल कर अपना घर बनाने वालों में लिख लें और मेरा कोई इस्लामी नाम भी आप रख दीजिए। हजरत साहब ने फोन पर बहुत मुबारकबाद दी और दुआ भी की और मेरा नाम मोहम्मद उमर रखा। मेरे मालिक का मुझ पर कैसा एहसान हुआ मौलवी साहब, अगर मेरा रवां रवां मेरी जान मेरा माल सब कुछ मालिक के नाम पर कुर्बान हो जाए तो भी इस मालिक का शुक्र कैसे अदा हो सकता है कि मेरे मालिक ने मेरे इतने बड़े जुल्म और पाप को हिदायत का जरिया बना दिया। सवाल, आगे इस्लाम को पढ़ने वगैरह के लिए आपने क्या किया? जवाब, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह घर पर ट्यूशन लगाया है। एक बड़े नेक मौलाना साहब मुझे मिल गए हैं, वो मुझे कुरान भी पढ़ा रहे हैं, समझा भी रहे हैं। सवाल, आपकी बीवी और पोते पोती का क्या हुआ? जवाब, मेरे मालिक का करम है कि मेरी बीवी युकेश की बीवी और दोनों बच्चे मुसलमान हो गए और हम सभी साथ में पढ़ते हैं। सवाल, आप यहाँ दिल्ली किस काम से आए थे? जवाब, नहीं, सिर्फ मौलाना ने बुलाया था। एक साहब मुझे लेने के लिए गए थे। हजरत साहब से मिलने का बहुत शौक था, बार बार फोन करता था, मगर मालूम होता
کے سفر پر ہیں، اللہ نے ملاقات کرا دی، بہت ہی تسلی ہوئی۔ سوال: ابھی سے اور کیا باتیں ہوئیں؟ جواب: حضرت صاحب نے مجھے توجہ دلائی کہ آپ کی طرح کتنے ہمارے خونی رشتے کے بھائی بابری مسجد کی شہادت میں غلط فہمی میں شریک رہے، آپ کو چاہیے کہ ان پر کام کریں، ان تک سچائی کو پہنچانے کا ارادہ تو کریں۔ میں نے اپنے ذہن سے ایک فہرست بنائی ہے۔ اب میری صحت اس لائق نہیں کہ میں کوئی بھاگ دوڑ کروں، مگر جتنا دم ہے وہ تو اللہ کا اور اس کے رسول کا کلمہ اس کے بندوں تک پہنچانے میں لگنا چاہیے۔ سوال: مسلمانوں کے لیے کوئی آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ جواب: میرے یوگیش کا غم مجھے ہر لمحہ ستاتا ہے، مرنا تو ہر ایک کو ہے مولوی صاحب، موت تو وقت پر آتی ہے، بہانہ بھی پہلے سے طے ہے، مگر ایمان کے بغیر میرا ایسا پیارا بچہ جو مجھ جیسے ظالم اور اسلام دشمن بلکہ خدا دشمن کے گھر پیدا ہو کر صرف مسلمانوں کا دم بھرتا ہو، وہ اسلام کے بغیر مر گیا۔ اس میں مسلمانوں کے حق ادا نہ کرنے کا احساس میرے دل کا ایسا زخم ہے جو مجھے کھائے جا رہا ہے، ایسے نہ جانے کتنے جوان بوڑھے موت کی طرف جا رہے ہیں، ان کی خبر لیں۔ سوال: بہت بہت شکریہ سیٹھ عمر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت مبارک فرمائے۔ یوگیش کے سلسلہ میں تو ابھی ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ فطرت اسلامی پر رہنے والے لوگوں کو مرتے وقت فرشتے کلمہ پڑھا دیتے ہیں، ایسے واقعات ظاہر بھی ہوئے، آپ اللہ کی رحمت سے یہی امید رکھیں یوگیش مسلمان ہو کر ہی مرے ہیں۔ جواب: اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے مولوی احمد صاحب، اللہ کرے ایسا ہی ہو، میرا پھول سا بچہ مجھے جنت میں مل جائے۔ سوال: آمین ثم آمین، انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ السلام علیکم۔ جواب: وعلیکم السلام۔ مصطفیٰ دزماہنامہ ارمغان، جون 2009۔ عرض مرتب جلد 3۔ اسلام دین فطرت ہے اور یہ امت خیر امت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ انسانیت کو فائدہ پہنچانے والی چیزوں کو باقی رکھتے ہیں اور خس و خاشاک کوڑا کرکٹ کو صاف کر دیتے ہیں۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُزْفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ سورہ رعد 17۔ انسانیت کی نفع رسانی اور خیر خواہی کے کام جب تک یہ امت کرتی رہی، اللہ تعالیٰ نے بھی اسے مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ جب سے یہ سبق امت نے بھلا دیا، ہر قسم کی ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن گئی۔ اس لیے ہمارے تمام مسائل کا حل دعوت کے کام پر کھڑا ہو جانا ہے۔ اگر کوئی شخص بھوکا ہے، اس کو ایک وقت کا کھانا آپ نے کھلا دیا، 2-4 گھنٹے بعد پھر اسے وہی ضرورت پیش آ جائے گی۔ اگر کوئی ننگا ہے، اس کو آپ نے کپڑے بنوا دیے، 6 مہینہ یا سال کے بعد اسے پھر کپڑے کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح دنیا کی وقتی ضرورتیں ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ پھر پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن ان کاموں کی بھی حدیث پاک میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ حدیث قدسی ہے، کل آخرت میں اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہ کی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں یہ کیسے کرتا، آپ تو رب العالمین ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں۔ اللہ فرمائیں گے، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، فلاں بھوکا تھا، فلاں پیاسا تھا، ان کی ضرورتیں پوری کرتا تو مجھ کو بھی وہیں پاتا۔ مسلم حدیث نمبر 6556۔ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی یہ فضیلت ہے تو ایمان جو ہر انسان کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ضرورت ہے، اس کی دعوت کا کیا مقام ہوگا؟ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کتنے خوش ہوں گے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دعوت کے اندر وہ طاقت ہے کہ مخاطب کو شرک و کفر کی اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لا کھڑا کرتی ہے، تو پھر خود داعی پر اس کا کیا اثر ہوتا ہوگا۔ الغرض دنیا کے سارے مسائل کا حل امت مسلمہ کا اس فرض منصبی پر کھڑا ہونا ہے، خاص کر ہندوستان کے موجودہ حالات میں جہاں پر نفرت و فرقواریت کا پرچار کیا جا رہا ہے۔ وقفہ وقفہ سے ملک کے کسی نہ کسی حصہ میں فسادات کی آگ بھڑکا دی جاتی ہے جو ہمارے جان و مال کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ان کا حق اور ان کی امانت ہم ان تک پہنچا دیں گے تو وہی ہمارے دوست اور جانثار بن جائیں گے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اللہ پاک ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس عطا فرمائے۔ صاحب افادات داعی اسلام حضرت مولانا محمد کلیم صاحب صدیقی مدظ اللہم کی دعاؤں اور توجیہات کی برکت سے کہ دیکھتے ہی دیکھتے تیسری جلد بھی اللہ تعالیٰ نے تیار کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھ کر ہم سب کو استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم مولانا عبد المصور صاحب ندوی زید مجدہم، ڈونگر گاونی، ضلع اکولہ، اور برادرم محمد یعقوب علی ولد جناب میر واجد علی صاحب عادل آبادی نے اس کتاب کے مسودہ پر نظر ثانی فرما کر مفید مشورے دیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور کتاب کی اشاعت کو ہدایت عامہ کا سبب اور امت مسلمہ کے لیے دعوت کے کام پر کھڑا ہونے کا ذریعہ بنائے۔ محمد روشن شاہ قاسمی، محتمم دارالعلوم سونوری، 11 شوال المکرم 1430 ہجری، میم 1 اکتوبر 2009 بروز جمعرات۔
जनाब अब्दुल्ला साहब गंगा राम चोपड़ा जी से एक मुलाकात। अहमद अव्वा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल्ला वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल, अब्दुल्ला साहब बहुत ज़माना पहले अभी अपने एक मज़मून में जो हमारे यहाँ की उर्दू मैगज़ीन अरमग़ान में छपा था, आपके कुबुल इस्लाम के वाक़या का जिक्र किया था। इसी वाक़ये से आपसे मुलाकात का इश्तियाक था और दिली ख्वाहिश थी कि अरमग़ान में जो इस्लाम कबूल करने वाले खुशकिस्मत लोगों के इंटरव्यू शाया करने का सिलसिला शुरू किया गया है, आपसे भी एक मुलाकात हो जाए तो खुद आपकी ज़ुबान से बातें मालूम हो। अल्लाह ने बड़ा करम किया, आप आ गए। मैं आपका कुछ वक्त लेना चाहता हूँ और आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। जवाब, बड़ी अच्छी बात है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हजरत ने तारुफ कराया, ये अहमद मेरे बेटे हैं। बहुत अच्छा लगा, आपकी सूरत देखी, दिल को लगा कि अल्लाह ने हजरत को औलाद भी बहुत प्यारी दी है। असल में मैं कोर्ट हार्ट हॉस्पिटल में जेर इलाज हूँ। मेरा आज चेकअप का दिन था। मुझे मालूम हुआ था कि मौलाना साहब दिल्ली में मिल सकते हैं। मेरा दिल वाकई बहुत चाह रहा था कि किसी तरह मौलाना के दर्शन हो जाएं। कई साल हो गए, कोशिश के बावजूद मिल भी नहीं सका। मेरे रब का एहसान है कि आज अच्छी तरह मुलाकात हो गई। कई साल की सारी कहानी सुनाकर दिल बहुत खुश हुआ। मौलाना साहब बहुत खुश हुए। आप मेरे लायक जो खिदमत हो जरूर बताइए। सवाल, पहले आप अपना तारुफ कराएं और अपने खानदान के बारे में बताएं। जवाब, मेरा पहला नाम गंगा राम चोपड़ा था। मैं रोहतक के एक गांव में एक पढ़े लिखे जिम्मेदार घराने में 1 जनवरी 1948 को पैदा हुआ। गांव के स्कूल से प्राइमरी तालीम हासिल की, फिर रोहतक दाखिला लिया। 1967 में बीकॉम करने के बाद एक स्कूल में पढ़ाने लगा। फिर एक ताल्लुक से मेरी सेल टैक्स में नौकरी लग गई। मैं रोहतक जिला का सेल टैक्स अफसर था। 4 साल पहले मैंने अपनी बीमारी की वजह से रिटायरमेंट ले लिया। मेरी शादी अब एक बड़े घराने में हुई। मेरी बीवी मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी और शादी के वक्त वो जिला शिक्षा अधिकारी BSA पर मुलाजिम थे। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बीवी घरेलू औरत बनकर सुकून से रहे। मेरे लिए औरतों की नौकरी गाय को हल में जोतने की तरह गलत था। मैंने शादी के 3 साल बाद जोर देकर उनसे नौकरी छुड़वा दी, मगर उनकी मर्जी के खिलाफ ये फैसला हुआ था, इसलिए हमारी घरेलू जिंदगी नाखुशगवार हो गई थी। बात बढ़ती गई, वो अपने घर चले गए। वो उनके घर वाले मेरी जान के दुश्मन हो गए और बात अदालत तक पहुंची। मुकदमाबाजी चलती रही। घरेलू जिंदगी की ये नाखुशगवारी मेरे ससुराल वालों की मुझसे दुश्मनी और मुकदमाबाजी मेरे लिए मसीहा बन गई और मेरे कुफर से निकलने का जरिया बनी। सवाल, माशाअल्लाह जी बात है, आप जरा इस हिदायत मिलने और कबूल इस्लाम के वाक़या को जरूर बताइए। जवाब, मुकदमाबाजी जोरों पर थी। अदालत का रुख मेरी बीवी की तरफ लग रहा था और ख्याल था कि मुझे सजा और जुर्माना दोनों का सामना करना पड़ेगा। मेरे वकील ने मुझे मशवरा दिया कि अगर आप कहीं से मुसलमान होने का सर्टिफिकेट हासिल कर लें तो इसे अदालत में पेश करके आपकी बहुत आसानी से जान बच सकती है। मुझे किसी ने मुसलमान ने बताया कि मालेर कोटला में एक मुफ्ती साहब है, उनका सर्टिफिकेट सरकार मानती है। मैं वहां गया, मुफ्ती साहब तो नहीं मिले, मगर लोगों ने मुझे बताया कि ये तो 15-20 हजार रुपए लेते हैं। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर मुफ्ती साहब हैदराबाद के सफर से 4 रोज बाद लौटने वाले थे। इतना इंतजार करना मेरे लिए मुश्किल था। मैं वापस आ रहा था, रास्ते में एक मस्जिद दिखाई दी। मैंने अपने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। ख्याल हुआ कि यहाँ के मियाँ जी से मालूम करूं क्या और कहीं भी ये काम हो सकता है। इमाम साहब सहारनपुर के रहने वाले थे। उन्होंने बताया कि यूपी के जिला मुजफ्फरनगर में एक जगह पुल है, वहां पर मौलाना कलीम साहब रहते हैं। आप वहां चले जाइए और किसी से कुछ मालूम ना करें। वहां आपका एक पैसा भी ना लगेगा। सारा काम कानूनी तौर पर वो खुद पक्का करवा देंगे। और उन्होंने मुझे पूरा रास्ता लिख कर दिया। कुछ दफ्तरी मसरूफियत की वजह से मैं वहां फौरन ना जा सका। तकरीबन 25 दिन के बाद मैंने मौका निकाला और 29 जनवरी 1994 को मैं फुल्त पहुंचा। रमजान का महीना चल रहा था। दिन छुपने के जरा बाद मैं अपने गार्ड और ड्राइवर के साथ फुल्त पहुंचा। मौलाना साहब मस्जिद में एतकाफ में थे। एक साहब मुझे मस्जिद में मौलाना साहब के पास ले गए। मस्जिद के छोटे कमरे में मौलाना साहब से मेरी मुलाकात हो गई। मैंने साफ साफ अपने आने का मकसद बयान किया और मौलाना साहब से कहा कि मुझे इस्लाम कबूल करने का सर्टिफिकेट चाहिए, अपनी बीवी के मुकदमा से बचने के लिए अदालत में जमा करना है। मुझे मुसलमान होना नहीं है, ना धर्म बदलना है और ना मैं धर्म बदल सकता हूँ, सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए। मौलाना साहब ने मुझसे कहा, क्या आप अदालत में भी यही कहकर सर्टिफिकेट दाखिल करेंगे कि मुसलमान नहीं हुआ हूँ बल्कि सिर्फ जैली सर्टिफिकेट बनवाया है। मैंने कहा, भला ये कैसे हो सकता है? अदालत में तो मैं यही कहूंगा कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, इसलिए मेरी बीवी से अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मौलाना साहब ने कहा, जहाँ आप बैठे हैं ये मस्जिद है, मालिक का घर है। इसकी बड़ी अदालत में आपको, हमको, सबको पेश होना है। वहाँ सबसे पहले इस ईमान और इस्लाम के सर्टिफिकेट के बारे में सवाल होगा। वहाँ जली सर्टिफिकेट पर गुजर नहीं होगा। इस पर वहाँ हमेशा की नर्क दोजख की जेल में सजा होगी। खैर, ये तो आपका, आपके मालिक का मामला है, मगर मेरा ये कहना है कि आप हमसे क्यों कहते हैं कि मुझे मुसलमान नहीं होना है? आप हमसे ये कहिए कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मुझे मुसलमान कर लीजिए और एक सर्टिफिकेट भी चाहिए। हम आपको कलमा पढ़वाते हैं, दिलों का भेद तो हम नहीं जानते।
तो ये समझ कर आपको मुसलमान कर लेंगे, आप सच्चे दिल से मुसलमान हो रहे हैं। इसमें हमारा ये फ़ायदा होगा कि हमारे मालिक ने एक आदमी के ईमान का ज़रिया बनने पर हमारे लिए जन्नत का वादा किया है। हमारा काम हो जाएगा। जहाँ तक दिल का मामला है, वो दिलों के भेद जानने वाला मालिक दिलों को फेरने वाला भी है। क्या खबर आप इसके घर में इतनी दूर से सफ़र करके आए हैं, आपको सच्चा ईमान वाला बना दें। फिर आपको हम सर्टिफिकेट भी बनवा देंगे, वो हमारे नज़दीक सच्चा सर्टिफिकेट होगा। हम जैली कोई काम नहीं करते। मैंने कहा जी ठीक है, मैं सच्चे दिल से मुसलमान होना चाहता हूँ, मुझे सर्टिफिकेट भी चाहिए। मौलाना साहब ने मुझे इस्लाम के बारे में कुछ बताया और ये भी कहा कि मौत के बाद इस बड़े हाकिम और बड़ी अदालत में हम सबको पेश होना है, ना झूठी गवाही चलेगी ना सर्टिफिकेट। अगर आप इस मालिक के लिए सच्चे दिल से ये कलमा जो मैं आपको पढ़वा रहा हूँ पढ़ लोगे तो मौत के बाद की हमेशा की जिंदगी में आपके लिए स्वर्ग जन्नत होगी, चाहे आप बाहर से किसी से मुसलमान होने को भी ना कहें। मौलाना साहब ने मुझे कलमा पढ़वाया और इसका हिंदी अर्थ तर्जमा भी कहलवाया और मुझसे हमेशा के लिए अल्लाह की पूजा करने और इसके सच्चे रसूल की ताबेदारी का अहद भी कराया और मेरा इस्लामी नाम अब्दुल्लाह बताया।